محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. عرس شریف حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر MLC کے کویتا کی جانب سے چادر روانہ. تلنگانہ سیکریٹریٹ کو ملک میں منفرد انداز میں تیار کرنے کی غرض سے ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا دورہ جے پور و مختلف تاریخی عمارتوں کا لیا جائزہ. حکومت کی جانب سے معذورین کے لیے چلائی جا رہی اسکیمات کی شعور بیداری و مفت آن لائن سروس کیمپ کا MSO و سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے کامیاب انعقاد. آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا دورہ گووند پیٹ و مرحوم TRS قائد کے افراد خاندان سے کی ملاقات و دیا پرسہ. عرس بڑا پہاڑ میں TRS اعلیٰ قائدین شرکت کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ حاصل کریں. فنڈز ہونے پر بھی ترقی نہ دینے پر کاہل و غافل وقف بورڈ کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کریں. کانگریس قائد جاوید اکرم کا مطالبہ. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی کامیاب ترین قیادت میں مختلف منڈل سے منسلک موضوعات ترقی کی جانب گامزن. آرمور کے خوشحال عوام نے کیا ان سے اظہار تشکر. آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کی کامیاب ترین نمائندگی کے باعث آرمور حلقہ اسمبلی میں مختلف منڈلوں سے وابستہ موضوعات کے عوام کو تمام ترین سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے ان موضوعات میں CC روڈ، ڈرینیج، تعمیری کاموں کے تیزی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے کسانوں اور عوام کو راحت پہنچانے کے لیے رائتو ویدیکا بھون، پلے پرگتی جنگلات، نرسری، ڈمپنگ یارڈ، وائکنٹھا دھام کا قیام عمل میں لانے سے مقامی عوام نے استفادہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کی کامیاب ترین قیادت میں آرمور حلقہ اسمبلی ترقی کی جانب رواں دواں ہو رہا ہے. اسی طرح سے انہوں نے آرمور نمستے پیپری نمستے نونتا پورم پروگرام کے تحت مختلف موضوعات میں دورہ کرتے ہوئے عوام سے متعلقہ مسائل سے واقفیت حاصل کر کے ذمہ دار عہدیداران کے علم میں لا کر فوری طور پر حل کرتے ہوئے مقامی عوام کے چہیتے قائد کے طور پر مشہور ہو گئے ہیں. مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نظام آباد و سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے معذورین کو سرکاری اسکیمات سے متعارف کرنے و مفت آن لائن سروس خدمات کا اہتمام. کثیر تعداد میں عوام نے حاصل کیا استفادہ. شہر کے مختلف سیاسی قائدین نے کیمپ میں پہنچ کر لیا جائزہ. حکومت کی جانب سے محکمہ معذورین فلاح و بہبود کے تحت معذورین کی ضرورت کے مطابق آلات کی فراہمی کے لیے اسکیم متعارف کرواتے ہوئے بذریعہ آن لائن درخواستیں طلب کی گئی تھی، جس کی تاریخ کی دوبارہ توسیع کی گئی اور اب اس کی آخری تاریخ 28 فروری ہے. اور معذورین کی مدد کے لیے آج مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نظام آباد اور سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک مفت آن لائن سروس و شعور بیداری کیمپ کا انعقاد شہر کے علاقے نئے بس اسٹینڈ کے للیتا کمپلیکس میں موجود ورسٹائل ٹیکس کنسلٹنٹس پر عمل میں لایا گیا. اس کیمپ سے کثیر تعداد میں مستحقین نے استفادہ حاصل کیا اور اس طرح کے کیمپ کے انعقاد پر انتظامیہ کی بیلوز و نوجوانوں کے بے باک خدمات کی ستائش کی. اسی طرح مجلس کارپوریٹر محمد منور علی و محمد علی باغبان، حرکیاتی کانگریس قائد ضیاء احمد و IUML سٹی صدر شعیب نے بھی کیمپ میں پہنچ کر جاری کاموں کا جائزہ حاصل کیا اور اس طرح کی مزید کیمپس کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے مستقبل میں اس طرح کی فراہی خدمات کے لیے اپنی جانب سے بھی مدد کا اعلان کیا.
اس موقع پر ذمہ داران MSO اکاؤنٹنٹ نواز رضا، صدیق رضا، بیہیویئر تھراپسٹ شہیر احمد، ڈاکٹر مزمل رضا، محسن، سہیل باغبان، الیاس باغبان، عمران رضا، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی، صدر سارا فاؤنڈیشن محمد شبیر و دیگر موجود تھے۔ الحمدللہ آج MSO اور سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے معذورین کے لیے جو گورنمنٹ کے تحت اسکیم دی جا رہی تھی آن لائن فارم کی رجسٹریشن کے لیے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا تھا۔ الحمدللہ یہاں پر کثیر تعداد میں لوگوں نے آ کر یہاں پر درخواستیں دیے، اور جو کوئی اگر یہاں پر داخل اپلیکیشن نہیں دیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریبی آن لائن سینٹر یا می سیوا پر جا کر درخواستیں دے دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج جو MSO اور سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے PHC کینڈیڈیٹس کے لیے جو آن لائن اپلیکیشن درج کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا تھا وہ ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے سکسیس رہا، اور جو لوگ آن لائن کرنے سے نہیں کرے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قریب میں جو بھی می سیوا سینٹرز ہے وہاں پر جا کر آن لائن اپلیکیشن درج کروا سکتے ہیں۔ MSO کو جو انہوں نے قوم کی خدمت کے لیے آگے آئے ہیں۔ ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی کلکٹریٹ کے پرگتی بھون میں اریگیشن عہدیداران کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے کلکٹریٹ کے پرگتی بھون میں اریگیشن عہدیداران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ آبپاشی سے تعلق رکھنے والے اثاثہ جات کی نگرانی کرنے کے ساتھ اس ماہ کی 22 تاریخ تک 30 چیک ڈیم سے منسلک پروگریس ڈیٹیلز کو دینے کے لیے کہتے ہوئے بتایا کہ 24 تاریخ تک ہر تالاب سے متعلق رکھنے والے سروے نمبرز کے ساتھ رقبہ و دیگر تفصیلات حوالے کرنے کے علاوہ مئی کے اختتام تک چیک ڈیم کی تعمیر کو مکمل کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ NREGS میں کینالز ڈیلیٹنگ پر کارروائی کرنے کے ساتھ فارمیشن آف فیڈر چینلز کی آئیڈینٹی پر کارروائی کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے بعد زائد کام کے ہونے پر اس وقت تمام کینال سے متعلقہ کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کا انکشاف کیا۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر چندرشیکھر، اریگیشن CE مدھوسودھن راؤ، نظام آباد SI نارائنا، کامریڈی SC ناگیندر، EE DE JE و دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی ٹیم نے جدید طور پر تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کے لیے استعمال کردہ فاؤنٹین اسٹور ڈیزائن کی خاطر 3 روزہ جے پور کا دورہ کر کے دیگر مقامات کا لیا جائزہ۔ تلنگانہ کے وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق دورہ کرتے ہوئے جے پور کے دیگر مقامات جیسے سکندرا پور، مانپور و دیگر مقامات کا معائنہ کرنے کے علاوہ رام باغ پیلیس، مہاراج مان سنگھ پیلیس، مہارانی گایتری دیوی فاؤنٹین اور مانپور میں اسٹون کارونگ ورک شاپ کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر موجود عہدیداران و مقامی افراد سے واٹر فاؤنٹین ڈیزائن اسٹون کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق جدید طور پر تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کو پرکشش بنانے کے لیے جے پور کے دیگر مقامات کا دورہ کرنے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ RNB ENC گنپتی ریڈی، EE ششیدھر، آرکیٹیکٹ آسکار شاہپور جی تنظیم کے نمائندے موجود تھے۔ تمہیں دیکھے تو تم سمجھ آ جاتا ہوں۔ یہ قلت کتنا پاس ہوتا ہے؟ اب کہاں تک بنا ہے؟ یہ بننا ہے، اس کو بننا ہے کیا؟ ہاں اس کو اس میں جیسے کہ پکڑیے یہ کون بناتا ہے؟ درگاہ بڑا پہاڑ کے 700ویں عرس کے موقع پر کے کویتا کی جانب سے چادر روانہ۔ تلنگانہ میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یکجہتی کے فروغ کے لیے MLC کے کویتا سرگرم۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل۔
हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 700वें उर्स शरीफ के मौके पर रुकन कौंसिल मोहतरमा के कविता ने बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ निजामाबाद में पेश की जाने वाली चादर बड़े ही अकीदत व एहतराम से हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह से रवाना की। इस मौके पर मोहतरमा कविता ने दरगाह शरीफ के नुमाइंदों से कहा कि 23 ta 26 फरवरी तक मुनक़िद होने वाले उर्स शरीफ के मौके पर रियासत तेलंगाना और तेलंगाना अवाम की सेहत और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम करें। हरदिल अजीज मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के एजाज में नौजवानों की जानिब से मोहम्मद मुनव्वर अली टूर्नामेंट का एहतमाम। आज इन्हीं के हाथों हुआ टूर्नामेंट का आगाज। कई नौजवानों के जज्बे की हिम्मत अफजाई। आज शहर के राजा राम स्टेडियम में नौजवानों की जानिब से मोहम्मद मुनव्वर अली टूर्नामेंट का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह हरदिल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों अमल में आया। इस टूर्नामेंट में न सिर्फ जिले बल्कि मुख्तलिफ मुकामात की टीमों ने शिरकत की और आज पहले दिन कई खिलाड़ियों ने अपने हुनर के जौहर दिखाए। इसी तरह कल इन मुकाबलों में कामयाब होने वालों में इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इन मुकाबलों के इनेकाद में सैयद अलीम, बिलाल खान, अब्दुल गफूर, शेख जावेद, शेख आसिफ व दीगर ने अहम किरदार अदा किया। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से 3 रोज़ा बंद का ऐलान। अशिया ज़रूरियात के साथ लेबर चार्जेस में इजाफा करने का मुतालबा। सदर तंजीम एच हनुमान राव व मोहम्मद सलीम का सहाफ़ती बयान। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल वायरमैन एसोसिएशन की जानिब से आज एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर तंजीम जी हनुमान राव ने कहा कि 25, 26, 27 फरवरी को बंद का एहतमाम किया जा रहा है, जिसका मकसद यह है कि अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होने के सबब लेबर चार्जेस में भी इजाफा हो रहा है, जिसके सबब हाउस वायरिंग और जनरल चार्जेस में भी इजाफा किए जाने के मुतालबे के सबब किया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने अपील की कि निजामाबाद जिले के आसपास की तमाम इलेक्ट्रीशियन अफराद से ख्वाहिश है कि इस मौके पर यूनियन के साथ मिलकर बंद को कामयाब बनाए और अपना हक हासिल करें। स्क्वायर फीट में काम करने की हिदायत दी। इस मौके पर टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद सलीम, इम्मी खदीर, नसीरुद्दीन, अतर खान, फेरोज अली, शेख अजीम, शेख इसरार, ख्वाजा, मुजीब व दीगर मौजूद थे। बंद का प्रोग्राम रख दिए 25 और 26 को एसोसिएशन की तरफ से। आप लोग आओ। और क्या है, पहले क्या है पॉइंट हिसाब में करते थे, फिर गुत्ता हिसाब में कर रहे, अभी स्क्वायर फीट में कर रहे तो है काम अपन, जिसकी क्या है स्क्वायर फीट से 100 गज एक पोर्शन पे कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये हो रहा। भाई क्यों 10 हज़ार में कर रहे, क्यों 12 हज़ार में 8 हज़ार में कर रहे? 20-25 हज़ार रुपये जो हो रहा बिलू फ़ायदा हासिल करो आप। हर चीज़ का रेट बढ़ेगा सो है, अपना रेट नहीं बढ़ाए तो कैसा? पेट्रोल का रेट देखो, सोने का रेट देखो, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा सो है, अपना भी दाम बढ़ेगा। 2 साल हो गए फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम क्या करें मालूम, हर जगह पे पामलेटा चिपका दिए, हर बिल्डर्स को, मिस्त्री को, हर एक को, हर एसोसिएशन वालों को बोल दिए कि हमारा ये रेट चल रहा बोल के इसको फॉलो करो बोल, तो वो लोग भी सपोर्ट करते बोले। अब खाली इलेक्ट्रिशियन सपोर्ट करने का है, खाली एसोसिएशन फुल सपोर्ट कर रही इलेक्ट्रिशियन को फ़ायदा उठा लो। తోటి వైర్మెన్ సోదరులకు తెలియజేసేది ఏమనగా మనమందరం కూడా ఈరోజు కిందికి దిగజారిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్క వస్తువు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగిపోయినాయి. దానికి అనుకూలంగా మనం కూడా పరేషాన్లో కూడా ఉన్నాము. కాబట్టి ఇది గ్రహించి అసోసియేషన్ ద్వారా రేట్లు పెంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్ని చేసే రేట్లన్నీ కూడా గుత్తా తర్వాత పాయింట్ హిసాబ్ కాకుండా స్క్వేర్ ఫీట్లో రేట్లు తయారు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వైర్మెన్ సోదరులందరూ కూడా యూనియన్ ఆఫీస్కి వచ్చి ఈ యొక్క స్క్వేర్ ఫీట్ రేట్లను చూసుకొని స్క్వేర్ ఫీట్లో రేట్లు చేసినట్టయితే మన యొక్క స్థితిగతులను మనము మెరుగుపరచుకోగలము, పడతాయని మనం ఆశిస్తూ ఉన్నాం. उर्स शरीफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के मद्देनज़र बोधन आरडीओ का दौरा, बड़ा पहाड़ व तैयारियों का लिया जायजा। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ के उर्स इंतजामात का आरडीओ बोधन राजेश्वर ने मुआयना किया। इस मौके पर आरडीओ बोधन ने बात करते हुए बताया कि दरगाह बड़ा पहाड़ के इंतजामात हो चुके हैं। उर्स बतारीख 23 फरवरी तक 25 फरवरी तक है। इसी तरह से ज़ायरीन के लिए काफी सहूलत मुहैया की जा रही है। पीने के पानी, 2 यौम तक ताम का इंतजाम वगैरह वगैरह। आरडीओ राजेश्वर ने दरगाह के अहाते में मौजूद जमा कुंडों में आलूदा गंदा
پانی، نالیوں میں گندا کچرا اور زائرین کے قیام کے لیے ناقص خستہ حالی ٹین شیڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے محمد ساجد وقف بورڈ انسپکٹر متحدہ ضلع نظام آباد کو فوری طور پر صاف صفائی کروانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر امیر احمد وقف بورڈ اسٹیٹ سیکرٹری عرس شریف انچارج اور محمد اسد اللہ خان OSD و تحصیلدار وقف بورڈ حیدرآباد نے بھی کہا کہ سہ روزہ عرس تقاریب کا آغاز 23 فروری سے ہو رہا ہے۔ عرس شریف کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ زائرین کے لیے درگاہ بڑا پہاڑ پہنچنے کے لیے RTC بسوں کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، لہٰذا تمام عقیدت مند اور زائرین سے اس عرس مبارک میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ عرس کے انتظامات، سالانہ عرس کے انتظامات کے لیے 12.5 لاکھ روپے منظور کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ روپے مینٹیننس کے لیے بھی منظور کیے ہیں۔ الحمدللہ تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور اس سال گزشتہ سال کی بنسبت اس سال زائرین کے لیے بریانی کا انتظام رہے گا۔ میں تمام زائرین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ దీంట్లో అరేంజ్మెంట్స్కి సంబంధించి ఆయా డిపార్ట్మెంట్స్ రిక్వెస్ట్ అనుగుణంగా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ బార్కెటింగ్ కానీ, ప్రాపర్ లైటింగ్ కానీ, శానిటేషన్ కానీ, మరియు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయని చూడడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది। ఈ యొక్క అరేంజ్మెంట్స్ సంబంధించి ఏవైతే ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు స్టేట్ వర్క్ బోర్డు నుంచి ఆఫీసర్స్ ఇచ్చారు। మన లోకల్ నోడల్ ఆఫీసర్గా మన డిస్ట్రిక్ట్ వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు। వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేషన్ చేసే బాధ్యతను తహసీల్దార్ కప్పచెప్పడం జరిగింది। इस मौके पर मोहम्मद साजिद वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर जिले निजामाबाद, शेख शब्बीर अली जोनल ऑफिसर वक्फ बोर्ड हैदराबाद, मोहम्मद अरशद अली उर्दू ऑफिसर कलेक्टर निजामाबाद, शेख मुमताज हुसैन मुंतजिम दरगाह बड़ा पहाड़ और शेख जमाल नायब मुंतजिम दरगाह बड़ा पहाड़ मौजूद थे। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने अचानक दौरा करते हुए शहर के BC हॉस्टल का मुशाहिदा कर तलबा से ग़िज़ा की फ़राहमी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने आज अचानक दौरा करते हुए शहर के दुब्बा इलाके में मौजूद BC तलबा हॉस्टल का मुशाहिदा करने के साथ तलबा से हॉस्टल में फराहम करदा सहूलियात व ग़िज़ा की फराहमी के बारे में जानकारी हासिल करने के अलावा ग़िज़ा की फराहमी से मुंसलिक फहरिस्त का जायजा लेकर इन्हें फहरिस्त से मुताल्लिक़ा अमल आवारी के ताल्लुक से तलबा से तफसीलात हासिल की। इन्होंने बताया कि कोरोना के बाद हॉस्टल का आगाज अमल में लाने के बाद तमाम तलबा कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर अमल करने के लिए ताकीद करते हुए बताया कि हर रोज समाजी फासले पर अमल करने के अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी यकीनी तौर पर करने का इजहार करते हुए इन्होंने हॉस्टल के दीगर जिम्मेदार ओहदेदारान से फराहम करदा सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम में इनके साथ दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। ఏదైతే ఈ కరోనా వల్ల ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏ మాత్రం కూడా ఆ విధంగా కనిపించడం లేదు। చాలా నీట్గా పరిశుభ్రంగా ప్రతి ఒక్క రూమ్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాల్స్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా పరిశుభ్రంగా ఉంచడం జరిగింది। మరి ఆ విధంగానే వాళ్ళ ఆహారానికి సంబంధించింది కానివ్వండి, లేదంటే ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా చక్కగా వాళ్ళ కోసం అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। वानी मंडल के मुकाम पर सुभाष चंद्र बोस ऑटो यूनियन की निगरानी में ऑटो यूनियन कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बेहद इजाफे के खिलाफ तेलंगाना चौरास्ते पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वानी मंडल के मुकाम पर सुभाष चंद्र बोस ऑटो यूनियन की निगरानी में ऑटो यूनियन कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल व पेट्रोल की कीमतों में बेहद इजाफे पर मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरास्ते पर एहतजाज मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि डीजल और पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से दरमियानी तबके के अवाम को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसी तरह से मरकजी हुकूमत इख्तियार में आने से कबल कीमतों में कमी का ऐलान किया था। इख्तियार पर आने के बाद इसे फरामोश कर दिया। डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफे के बाइस जरूरी अशिया की कीमतों में भी बेहद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से दरमियानी तबके का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क गिर सतह पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के बावजूद भी हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है।
मरकजी हुकूमत के दौर में समाज का हर तबका परेशान है। किसान सियाह कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं तो दरमियानी तबके की अवाम कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी न लाने पर मरहलेवार एहतजाज मुनक्किद करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में ऑटो यूनियन सदर श्रीनिवास और शंकर, प्रवीण व दीगर ने शिरकत की। पेट्रोल डीजल ధరలకు నిరసనగా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ఆటో యూనియన్ సభ్యులు, రైతు సంఘాలు పాల్గొని మాకు మద్దతు చేయడం జరిగింది। ప్రధానంగా పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు ఈ మధ్య విపరీతంగా పెరిగిపోయి సామాన్యుడు జీవన విధానం చాలా ఇబ్బందిగా తయారవుతుంది। वर्नी लायंस क्लब और यूके चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी में वर्नी मंडल के मुकाम पर मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद। वर्नी लायंस क्लब और यूके चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी में वर्नी मंडल के मुकाम पर मुफ्त मेगा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए इस तिब्बी कैंप में माहिर डॉक्टरों की जानिब से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को मुफ्त तशखीस करने के साथ इन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। इस मौके पर लायंस क्लब सदर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि इंतजामिया की जानिब से अवाम की तिब्बी खिदमत के नेक मकसद के तहत वक्फे से मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को तशखीस करने के अलावा मुफ्त अद्वियात फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में मुख्तलिफ अमराज से मुंसलिक मरीजों को सिर्फ तशखीस के लिए भारी फीस अदा करनी पड़ती है। आज वर्नी लायंस क्लब और यूके चैरिटेबल ट्रस्ट की निगरानी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने पर निजामाबाद के महालक्ष्मी बच्चों का हॉस्पिटल और बोधन लायंस क्लब के तिब्बी अमले ने इस तिब्बी कैंप में शिरकत करके गुरबा का मुआयना करते हुए इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर हरे कृष्णा, लायंस क्लब मेम्बरान, भारत गैस नरसैया ठाकुर, श्रीनिवास, वीरा राजू, तांबा शिवाराव, विजय लक्ष्मी, सुब्बाराव व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा अलखसमली मंडल के मुकाम पर मोरताड़ में जिले भीमगढ़ जरई सोसाइटी के बानी दोनकल बदम नरसैया रेड्डी की अहलिया बदम सुनीता की क़यादत में किसानों से मुताल्लिक़ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा अलखसमली मंडल के मुकाम पर मोरताड़ में जिले भीमगढ़ जरई सोसाइटी की निगरानी में जरई सोसाइटी के बानी दोनकल बदम नरसा रेड्डी के अहलिया बदम सुनीता की क़यादत में दीगर मंडलों से मुताल्लिक़ा किसानों का इजलास अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि फिलहाल हल्दी की फसल को कुंटल के तौर पर 10,000 रुपये अक़ल तरीन इमदादी रकम फराहम करने के साथ मार्केट के तहत हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाने के लिए करारदार को मंजूर करने के साथ लाल जवार की फसल को कुंटल के तौर पर 3,800 रुपये कीमत के तहत खरीदी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक़ा याददाश्त को जिले कलेक्टर, आरडीओ, तहसीलदार को फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जरई सोसाइटी कायद बीजी गंगाराम, रवि, रमेश रेड्डी, राजना, बदम गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। आरमूर प्रेस क्लब मेम्बरान की रुकन असम्बली आरमूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात व सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल से करवाए वाकिफ। आरमूर प्रेस क्लब सदर गुमड़ी शंकर की क़यादत में रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने उर्दू, तेलुगु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहाफ़ियों ने मुलाकात और मुख्तलिफ मसाइल के यकसुई के लिए नुमाइंदगी की गई। बातज़ा प्रेस क्लब सदर आरमूर गुमड़ी ने बताया कि आरमूर प्रेस क्लब दफ्तर की अराजी और तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को डबल बेडरूम मकानात फराहमी और दीगर मसाइल पर नुमाइंदगी की गई, जिस पर रुकन असम्बली इन तमाम कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिया, जिस पर प्रेस क्लब सदर गुमड़ी शंकर ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर प्रेस क्लब एडवाइजर सागर से जफर अली, पी चंद्रशेखर के अलावा नरेंद्र, राजेंद्र, मोहम्मद हामिद अली, सैफ अली और दीगर मौजूद थे। పత్రికా విలేకరులు, ప్రింట్ మీడియా సోదరులందరికీ నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అనేవి, ప్రింట్ మీడియా అనేవి మరి ఈరోజు మనము గోవిందపేట గ్రామానికి వెళ్ళి మరి ఎమ్మెల్యే గారిని కలిసి మన సమస్యలు మరోసారి విన్నవించుకుందామనేటువంటి కోణంలో మనం ఈరోజు వచ్చి మనము ఎమ్మెల్యే గారిని కలవడం జరిగింది। అందుకు నా తోటి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ మనము గతంలో అనుకున్నటువంటి ఏవైతే డబుల్ బెడ్రూమ్లు माकरूर मंडल मौजे मोलंगी में मुकामी सरपंच की क़यादत में मुनक़िद करदा TRS रुकनियत साजी मुहिम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत।
मकरूर मंडल मौज़िब मुलंगी में मुकामी सरपंच पावनी श्याम राव की क़यादत में मुनक़िद करदा टीआरएस रुकनियत साजी मुहिम प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव ने शिरकत करके कहा कि मौज़िब मुलंगी में पार्टी कारकुनान जायद मेहनत करते हुए कसीर तादाद में पार्टी रुकनियत साजी करते हुए टीआरएस पार्टी को मुस्तहकम बनाने का इजहार करते हुए बताया कि इस रुकनियत साजी से मुंसलिक होने पर हादसाती तौर पर मौत वाक़ होने पर टीआरएस हुकूमत की जानिब से 2 लाख रुपए इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद रहने पर अवाम बड़े पैमाने पर टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इंकशाफ। इसी तरह से इन्होंने वेंकटनापुर सीसी रोड व ड्रेनेज के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच साइलू केसीआर सेवादल जिले सदर रमन्ना राव टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। ఇక్కడ టార్గెట్ క్రియాశీలక 100 సాధారణ సభ్యత్వం 250 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 50% టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ అయింది। ఇక్కడ మరి పెద్దలు రమణారావు కానీ శ్యామరావు కానీ ఉప సర్పంచ్ కానీ మిగతా పెద్దలు ఉన్నారు। ఇంకా మిగతాది 2-3 డేస్లో కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने एमपी बीबी पाटिल जेडपी चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू के हमरा जिले कामरेड्डी जुकल रुकन असम्बली हल्के के 4 मंडलों में तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाया। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी नैनी निरंजन रेड्डी ने एमपी बीबी पाटिल जेडपी चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू के हमरा जिले कामरेड्डी जुकल रुकन असम्बली के 4 मंडलों में तामीर करदा रायतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाने के अलावा पेटला मंडल के चिन्ना गोड़पल, पेद्दा गोड़पल देहात और बिचकुंदा व मदनूर में रायतु वेदिका भवन का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वजीर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वजीर आला केसीआर की क़यादत में किसानों को नफा बख्श कीमत फराहम करने के मकसद के तहत मुख्तलिफ मंडलों से मुंसलिक मौज़ूआत में रायतु वेदिका भवन का क़याम अमल में लाकर इनकी काश्त करदा फसलों को बेहतर कीमत फराहम करने में अहम तरीन रोल अदा करने का इजहार करते हुए बताया कि हर एक रायतु वेदिका भवन में किसानों को ज़राअत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल हो सके। इन साइंसी मराकिज़ से किसान काश्त और फसलों की उम्दा पैदावार के हुसूल के लिए किए जाने वाले इक़दाम आपस में मशवरा करते हुए एहतियाती तदाबीर और ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने के तरीक़े पर तबादले ख्याल करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तभी मुल्क की तरक्की होगी। शोबे ज़राअत को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना कई स्कीमात को मुतारफ किया था, जिनमें 24 घंटे की मुफ्त बरक़े की दस्तियाबी, रायतु बंधु और रायतु बीमा शामिल होने का इंकशाफ किया। सिर्फ 7 साल अरसे में निज़ामाबाद अर्बन में करोड़ रुपए के तरक्याती काम से दादे तहसीन, जदीद कलेक्ट्रेट, मिनी टैंक बोर्ड, IT हब, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तकमील, खूबसूरत सड़कों का जाल, बेशुमार तरक्याती काम। हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता अपनी कारकर्दगी और तरक्याती कामों के अंजाम दही की बिना पर रियासत तेलंगाना के नंबर 1 MLA के तौर पर उभर रहे। शहर के अवाम खुद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के तरक्याती काम का मुशाहिदा कर सकते हैं, जिनमें सबसे अहम 75 महकमे जात पर मुश्तमिल जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत है, जहाँ पर अवाम को एक ही छत के नीचे जिले कलेक्टर से लेकर तमाम आला ओहदेदार दस्तयाब रहेंगे। अनकरीब जदीद कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में आएगा। जदीद कलेक्ट्रेट के नज़द IT हब की तामीर भी तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी है, जहां पर आला तालीम याफ्ता लड़के लड़कियों को रोजगार हासिल होगा और IT हब रोजगार का बहुत बड़ा मरकज बनेगा। यही नहीं, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में निज़ामाबाद अर्बन में डबल बेडरूम मकानात तकमील के मराहिल में है। मई तक डबल बेडरूम मकानात तकमील करते हुए मुस्तहक़ अफराद में रास्त जिले कलेक्टर की निगरानी में तकसीम किए जाएंगे। तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में निज़ामाबाद शहर को पसमानदा कर दिया गया था। 2014 में मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता रुकन असम्बली मुंतखब होने पर इन्होंने शहर में ज़ेरे ज़मीन ड्रेन के तामीरी कामों की तकमील अमल में लाई और मंसूबे के मुताबिक अंडरग्राउंड ड्रेन को कनेक्शन देते हुए शहर से ड्रेन सिस्टम को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेन की तकमील के बाद सारे शहर में खूबसूरत सड़कों का जाल फैलाया गया। आज शहर के हर रिहायशी इलाके में अवाम को आमद रफ्त के लिए खूबसूरत सड़कें दस्तियाब है। इसके अलावा
अलावा अहम शाहरों पर डिवाइडर्स तामीर करते हुए शिजकारी की गई, LED लाइट लगाए गए जिससे शहर की सड़कें खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी से जदीद कलेक्ट्रेट और IT हब के नजदीक नैक सेंटर कायम किया जा रहा है, जहाँ पर तलबा व तालिबात को असरी कोर्सेज की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता तमाम तबकात के अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुस्तफिद कर रहे हैं। CM रिलीफ फंड, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के तहत हर माह कसीर तादाद में चेक्स की तकसीम अमल में लाई जाती है। अलावा अजीज शहर के तमाम 60 डिवीजनों में एकसा तौर पर तरक्याती काम की मंजूरी अमल में लाते हुए तेजी के साथ संग बुनियाद प्रोग्राम किए जा रहे हैं और देखते ही देखते तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तेलुगु देशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में निजामाबाद शहर इंतहाई पसमानदा हो गया था। शहर के अवाम के लिए तरक्की एक ख्वाब बनकर रह गया था, लेकिन मिस्टर डेवलपमेंट मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने तरक्की का बेड़ा उठाते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुसलसल नुमाइंदगी के जरिए करोड़ों रुपए तरक्याती फंड हासिल किया। आज शहर निजामाबाद खूबसूरत तरीन और साथ ही तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होने जा रहा है। खिला तालाब जो गफलत का शिकार बना दिया गया था, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी से आज मिनी टैंक बॉन्ड में तब्दील हो रहा है, जो अवाम के लिए खूबसूरत तफरी मुकाम साबित होगा। इसके अलावा शहर के कई डिवीजनों में अवाम की सेहत के लिए ओपन जिम कायम किए जा रहे हैं और अवाम की तफरी के लिए कई डिवीजनों में पार्क कायम किए जा रहे हैं। निजामाबाद शहर की मजमूई तरक्की इत्मीनान बख्श है, जिसकी बिना पर रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता नंबर 1 MLA के तौर पर उभर रहे। 7 साल अरसे में मिस्टर बिगाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद शहर की सूरत हाल बदल कर रख दी। जो शहर 70 साल से पसमानदगी का मरकज बना हुआ था, सिर्फ 7 साल अरसे में इन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देते हुए अवाम के दिलों में ये उम्मीद जगाई है कि निजामाबाद शहर भी तरक्की कर सकता है। आज शहर की बेमिसाल तरक्की का सहरा नंबर 1 रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के सर जाता है। आइंदा कई बरसों तक इनकी कामयाबी यकीनी मानी जा रही है। PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा गोविंदपेट, मरहूम वार्ड मेंबर शेख समी के अफराद खानदान से की मुलाकात व दिया पुरसा। रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आदाब गोविंदपेट के उन्वान पर गोविंदपेट देहात का दौरा करते हुए अवाम के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत हासिल की और मसाइल के यकसी के लिए ओहदेदारों का अहकामात जारी किए। इसके अलावा गोविंदपेट TRS अक़लती क़ायद सैयद अहमद की नुमाइंदगी पर हाल ही में बीमार होकर फौत होने वाले वार्ड मेंबर शेख समी के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। इनके अफराद खानदान को डबल बेडरूम मकान की मंजूरी का तयखुन दिया। इसके अलावा इनकी फर्जिन जो आर्मूर के खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम है, स्कूल इंतजामिया से बात करते हुए फीस को माफ करवाया। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, TRS अक़लती कायदीन मलक बाबा, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आदिल, TRS लीडर पंडित पवन, शेख मुन्नू, श्रीनिवास, B राजू और मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद थे। గతంలో ఇప్పుడు లేని విధంగా రైతులు సంతోషం, పేద బడుగు బలైన వర్గాలు సంతోషం, కళ్యాణ లక్ష్మితో వాళ్ళు సంతోషం, ఉచితంగా డెలివరీలు, KCR కిట్, 100 పడకల ఆసుపత్రిలో గతంలో లేని విధంగా ఉచితంగా 27,000 మందికి డెలివరీలని, 37,000 మందికి CM రిలీఫ్ ఫండ్లు, ఎల్ఓసీలు, దావకాన్లు ఇప్పటిదాకా మనం అందజేసినాం. ఇన్ని సేవలు చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి ఇంట్లో సంతోషం ఉంది. ఈ నమస్తే గోవిందపేట కార్యక్రమంకి వచ్చిన విలేకరులకు, అదేవిధంగా మా అధికారులకు వాళ్ళు ఆదివారం అయినా కానీ వస్తూ ఉన్నారు. नए मुतारफ करदा कानून में किसानों से मुतालिका इंसाफ पसंद हुकूक न होने का वकला ने किया इजहार। ज़िले निजामाबाद के खलीलवाड़ी में वाक़ प्राइवेट डिग्री कॉलेज में ह्यूमन राइट्स फोरम की निगरानी में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आयद करदा ज़र क़वानीन से मुतालिका शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर तेलंगाना बार कौंसिल मेंबरान एम राजेंद्र रेड्डी ने शिरकत करके कहा कि हाल ही में मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ज़र क़वानीन किसानों के लिए नुकसानदा करार दिया। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स फोरम सदर ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से लाए गए ज़र क़वानीन से सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को ही रास्ते तौर पर फ़ायदा पहुँचाने का इजहार करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ज़र कानून में किसान बादशाह नहीं है, बल्कि कंपनी को ही मालिकान हुकूक हासिल होने का इंकशाफ किया। 100 రూపాయలైనా ఏమనుకుంటే మనం పెట్రోల్ ఉంటుంది, అది అలవాటు చేసేస్తారు. వాట్ ఎవర్ ద పించ్ ఆన్ అవర్ పాకెట్ విల్ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్. ఆ పరిస్థితికి తెస్తున్నారు. మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ప్రైస్ అష్యూరెన్స్ ఫార్మ్ సర్వీసెస్ యాక్ట్, యు ఆర్ గివెన్ లిబర్టీ టు ఎంటర్ ఇంటు అ కాంట్రాక్ట్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో లిమిట్. యు కెన్ ఎంటర్ ఇంటు అ కాంట్రాక్ట్ విత్ కార్పొరేట్స్.
दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स इंतजामात व हालात का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, MLC के कविता, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी उर्स में शिरकत करते हुए जायजा हासिल करें। वक्फ बोर्ड की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात, लेकिन कुछ तरक्की नहीं। यहाँ तक कि पोचराम साहब की जानिब से दिए गए फंड्स व अहकामात को तक किया जा रहा है नजरअंदाज। वक्फ बोर्ड समेत कार्रवाई जरूरी। साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड व कांग्रेस हरकियाती क़ायद जावेद अकरम का मुतालबा। बंद गुजारिश करता हूँ कि हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का हर साल वक्फ बोर्ड से टेंडर होता है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख का टेंडर हुआ है। लेकिन यहाँ जब सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर इंतज़ामात के बारे में देखें तो इंतज़ामात तमाम ज़ीरो है। और जो 3 करोड़ 60 लाख रुपए जो तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना वक्फ बोर्ड टेंडर में हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी के रकम जो ली जा रही है, वो रकम से तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दी जाती है। लेकिन मैं हमारे कविता मैडम जी से और हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब से और CM साहब से और KTR साहब से और प्रशांत रेड्डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के टाइम पर आप आइए और वहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लीजिए। जब मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था तो मैंने हमारे हरदिल अजीज़ पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब का दौरा करवाया। उमर जलील साहब को साथ में लेकर वहाँ हम लोगों ने दौरा किया और वहाँ के हालात का जायज़ा लेने के बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब जो साबिक़ा मिनिस्टर थे, अब स्पीकर हैं, उन्होंने 2 साल टेंडर बंद करवाया। तेलंगाना गवर्नमेंट में हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का नाम बोलकर वहाँ के जो लूट मार करने वाले हैं, वहाँ पर लूट मार कर जितने भी ज़ायरीन आते थे, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, जितने भी हज़रत को चाहने वाले ज़ायरीन जो आते थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उनके ऊपर जुल्म होता था। कहीं गले में पैसे डालो, कहीं बकरे काटने पैसे दो, कहीं झोपड़ियों को पैसे दो, कहीं वाटर को पैसे दो, ऐसा ये महसूस होता था। लेकिन मेरी आवाज़ पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने, मैं उनके पास जाकर अदबन गुजारिश किया तो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब बड़े पहाड़ का दौरा किए थे। उमर जलील साहब जो माइनॉरिटीज़ के ऑफिसर थे तेलंगाना गवर्नमेंट के, उन्होंने आने के बाद वहाँ का दौरा करने के बाद वहाँ के हालात को देखते हुए वहाँ पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उमर जलील साहब ने ये ऐलान किया कि टेंडर को बर्खास्त किया जाएगा। और हज़रत अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये उर्स में ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो। हज़रत को जो चाहने वाले वहाँ पर आते हैं, हज़रत किससे ज़ियारत करने के लिए जो आते हैं, ना उनकी ज़ियारत करने वालों को तकलीफ़ ना हो, ना वहाँ ज़ियारत करके रहने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, ख़ास करके चीफ मिनिस्टर साहब से ये मेरी अपील है कि इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। उर्स शरीफ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मद्देनजर MLC के कविता की जानिब से चादर रवाना। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को मुल्क में मुनफरिद अंदाज में तैयार करने की गर्ज से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दौरा। जयपुर व मुख्तलिफ तारीखी इमारतों का लिया जायजा। हुकूमत की जानिब से माजूरीन के लिए चलाई जा रही स्कीमात की शौर बेदारी व मुफ्त ऑनलाइन सर्विस कैंप का MSO व सारा फाउंडेशन की जानिब से कामयाबी इनेकाद। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा। गोविंदपेट व मरहूम TRS कायद के अफराद खानदान से की मुलाकात व दिया पुरसा। उर्स बड़ा पहाड़ में TRS आला कायदीन शिरकत करते हुए इंतजामात का जायजा हासिल करें। फंड्स होने पर भी तरक्की ना देने पर काहिल व गाफिल वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस कायद जावेद अकरम का मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।